So we are discussing the derivative of implicit function. In implicit function, the form of this function is like this: f of x comma y is equal to 0. Here the variables x and y are connected in such a way that we cannot express x completely in terms of y or y completely in terms of x. So such a relation between two variables x and y is called an implicit relation. So this implicit relation का derivative लिखते time how we are differentiating it? We are differentiating it by treating x as a function of y. x को हम y का फंक्शन ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट कर रहे हैं. In fact, y is also function of x, but in general we are treating one of them as a function of another one. So let us differentiate this. In this, here is a very famous result, and it is one of the best shortcut also. So what is the shortcut? You write this: if x raised to m y x plus y raised to m plus n, if x plus y raised to m plus n is x raised to m y raised to n. This is very important shortcut. Then prove that dy by dx is y by x. So this is the result. What it means? It means ये जो पावर है x प्लस वाई रेस टू m प्लस n, ये इसकी सम यहां पे है. तो ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज y बाय x आता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है. आगे चल के हम इसको यूज करने वाले हैं एज अ शॉर्टकट. सो x प्लस वाई रेस टू m प्लस n इज x रेस टू m y रेस टू n. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कितने क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. यू सी दैट इज, मैंने अगर लिखा दैट इज x प्लस वाई रेस टू 12 इज x रेस टू 7 y रेस टू 5. What is answer? Answer is dy by dx. Shortcut dy by dx is y by x. यहाँ पे इन दोनों की सम यहाँ पे है, तो it is for any real numbers x and y. If the sum of x and y is appearing here at x plus y raised to m plus n, so always the answer is y by x. So if I write x plus y raised to say 17 is equal to x raised to 9 y raised to 8, so the answer is dy by dx is y by x. So all such kinds of examples, the answer is y by x. So you can vary m and n and you will find plenty of forms of these results. So this is a very important result. X plus y raised to m plus n is x raised to m y raised to n. Then derivative is y by x. So let us prove it and then proceed for the examples. It is somewhere in the exercise, but I took it at first, right? So this is the given. So how to differentiate this? What is the way?
is not the product you are observing, this is in terms of product, right? So for product, better to take log and differentiate it. And x plus y raised to m plus n is there. So taking log and then go for differentiation, because log will simplify the expression, the best, especially the product, and the exponent law can be applied here, log e raised to b, right? So let us have this in this direction. So taking log on both sides, right? So if I take log on both sides, it is log x plus y raised to m plus n is log x raised to m y raised to n. And here is log product is applicable, that is m plus n log x plus y is, this is m log x plus n log y, right? It is m log x, so I have used log product as well as log exponent, a raised to b, b log a, right? And at the same time we are using log mn. Log mn is log m plus log n, or log eb we can say, right? And now differentiate this. This is m plus n is a constant. Instead of m, you may find there may be p and q, any constants can be written. Now let us differentiate this with respect to x. So if I differentiate with respect to x, it is m plus n. What is the derivative of log of x plus y? 1 upon x plus y. But it is implicit function. Keep in mind, derivative of log of x plus y, 1 upon x plus y into derivative of x is 1 and derivative of y is dy by dx. This is a chain rule. Observing student, this is of the form, which form? Log f of x. What is the derivative of log f of x? 1 by f of x into f dash of x. Derivative of x is 1. Derivative of y is dy by dx. Fine. On right hand side, the derivative of this m by x plus derivative of n by y. Here again, log f of x form is applicable. So it is dy by dx. So in derivative of implicit functions, what to do? You are collecting all terms containing dy by dx on one side, and those terms which do not contain dy by dx, that is to be transferred on right hand side. So this is 1 into this, means m plus n upon x plus y. M plus n into this, so it is what? M plus n upon x plus y into dy by dx is equal to m by x plus n by y into dy by dx. Fine. Now collect dy by dx on one side. So then let us take this on left and this on right. Left right में लिखे इसको, right? So if I transfer these terms, so what I am getting is, you observe, this to be left, so it is m plus n upon x plus y minus n by y into dy by dx.
the same time we are collecting the coefficient also, right? So coefficient of dy by dx we are collecting on one side, and this on right means m by x minus m plus n by x plus y. ये टर्म राइट में जाके निगेटिव होगी और ये टर्म लेफ्ट में आके निगेटिव होगी. ये dy by dx के कोएफिशिएंट एक साथ कलेक्ट किए और ये जिसपे dy by dx नहीं है ऐसे टर्म राइट में लिखे, राइट. सो व्हाट रिमेन्स इज दिस, you have a cross multiplication here, so it is my plus ny minus nx minus ny upon x plus y into dy by dx is equal to x into x plus y mx plus my minus mx minus nx. So x plus y going to cancel, right? What remains here? Minus ny plus ny cancel, minus mx plus mx cancel. Here is remaining is what? my minus nx upon y into dy by dx is equal to my minus nx upon x. So if I rewrite this, let us transfer this to right, and I can cancel this my minus nx. Okay, I am cancelling in next step. So it is x, this y will be in numerator and this will be my minus nx. So my minus nx going to cancel, and final answer is dy by dx is equal to y by x, right? So this is the derivative of implicit function. तो ये implicit function में very important shortcut बोल के आगे चल के हम ट्रीट करने वाले हैं. So this is one of the best shortcut. राइट, तो इस शॉर्टकट को कैसे याद रखना है? इन दोनों की सम इस ब्रैकेट के पावर में होनी चाहिए, राइट? तो वो सम वहां पे है, तो एज अ शॉर्टकट बोल के हम इसको यूज करने वाले हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में एज ए एग्जांपल बोल के भी आता है. प्रूव दैट dy by dx is y by x. तो कांस्टेंट जो होते हैं वो m n हो सकते हैं, p q हो सकते हैं, एनी कांस्टेंट्स. राइट, so if x plus y is equal to m plus n, then x raised to m y raised to n, dy by dx is y by x. प्रूफ इसका लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लॉग में प्रोडक्ट और एक्सपोनेंट को अच्छे से डील करने आता है, राइट? यस, सो वी आर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज 1.3, राइट? ये भी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको मैंने पहले ही लिया, तो रिमेंबर इट एज अ शॉर्टकट. Right. So, which example we are discussing? I think this is exercise 1.3 of your textbook, question number 3, the sum number 3. Right. It is x plus root of xy plus y is equal to 1. X plus root of xy plus y is equal to 1.
फंक्शन है, देखते ही समझ में आ रहा है। आर यू रियलाइजिंग? यहाँ पे x को y में हम कंप्लीटली नहीं लिख सकते हैं या y को x में हम कंप्लीटली नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते टाइम हमने कन्वेंशन फॉर्म किया कि y जो है x का फंक्शन है। So derivative of x is 1 plus derivative of root xy। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। यहाँ पे root xy का डेरिवेटिव लिखते टाइम one should be very careful। कैसे डेरिवेटिव लिखेंगे? root f of x का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। root f of x, you know डेरिवेटिव of root f of x क्या फार्मूला है हमारे पास? रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, राइट? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वाई डैश 1/, जिनको मालूम नहीं है चेन रूल का ये टेबल लिख रहा हूं, एफ डैश ऑफ एक्स, राइट? सो इट इज 1/2 रूट एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 0। यस, सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो डेरिवेटिव लिखते टाइम थोड़ा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो रूल्स तो चेन रूल के एप्लीकेबल ही है, साथ में थोड़ा सा और केयरफुल। x का डेरिवेटिव 1, रूट xy का डेरिवेटिव 1/2 रूट xy इंटू xy का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन x, दूसरे का डेरिवेटिव dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन y, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो y जहां पे भी है उसको हमें ट्रीट करना है x का फंक्शन। तो ये y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 0। बस अब ये चेन रूल से मतलब रूल जो है चेन रूल के ही है सब, लेकिन माइंड में क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा ट्रीट करके हमने डिफरेंशिएट किया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन में डेरिवेटिव लेने के बाद जिसमें भी dy by dx है वो सारे टर्म लेफ्ट में कलेक्ट करें और जिसमें dy by dx नहीं है वो राइट में ट्रांसफर करें। सो इट इज 1 प्लस x बाय 2 रूट xy इंटू dy by dx। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये y बाय 2 रूट xy प्लस dy by dx। ये हर एक एग्जाम्पल में प्रोसेस याद रखें। जिसमें dy by dx है वो टर्म खाली लेफ्ट में रखे और जिसमें dy by dx नहीं है यू आर ट्रांसफरिंग दिस टर्म टू राइट, राइट? तो ये देखो dy by dx इस टर्म में है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिया ब्रैकेट में, और यहाँ पे dy by dx है, यहाँ पे dy by dx है, ये दो टर्म है, उसका कोएफिशिएंट कलेक्ट करें। ये x/2 रूट xy प्लस 1 इंटू dy by dx इज इक्वल टू माइनस y/2 रूट xy माइनस 1, राइट? सो इट इज, ये इसका एलसीएम आएगा x प्लस 2 रूट xy अपॉन 2 रूट xy इंटू dy by dx इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन लेके y प्लस 2 रूट xy अपॉन 2 रूट xy
इधर भी एलसीएम फाइंड किया मैंने, y कॉमन लेके ये 2 रूट एक्स वाई, 2 रूट एक्स वाई गोइंग टू कैंसल, राइट, एंड व्हाट वी आर हैविंग इज दिस। अब ये dy by dx क्या आ गया, dy by dx is minus y plus 2 root xy upon x plus 2 root xy, right? So it is the derivative. Fine. So differentiating with respect to x, ये डिफरेंशिएट किया हमने इसको, x का डेरिवेटिव 1, ये रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट f ऑफ x इंटू f डैश, और हर एक में थोड़ा ये कैलकुलेटिव होता है। dy by dx जिस टर्म में है वो टर्म्स के कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, जिसमें dy by dx नहीं है ऐसे सारे टर्म राइट हैंड साइड में भेज दो और यू राइट द आंसर, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। So this is derivative of implicit function. Next, this is fourth में क्या है देखिए, x raised to 3 plus x square y plus xy square plus y raised to 3 is 81। तो देखो क्वेश्चन को देखते ही पहले तो समझ में आना चाहिए कि इट बिलोंग्स टू इम्प्लिसिट फंक्शन। फंक्शन जो है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस y in terms of x और x in terms of y, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो थंब रूल क्या है, y को x का फंक्शन ट्रीट करे और dy by dx के सारे टर्म लेफ्ट में, एंड जिसमें dy by dx नहीं वो सारे टर्म राइट में। यस, देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएट करते टाइम माइंड में फिक्स है कि जहां पे भी y आएगा उसमें x है समझ लेना है, जहां पे भी y है उसमें x है समझ लेना है। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये तो कोई तकलीफ का काम ही नहीं है, x क्यूब x रेज़ टू n। यहां पे प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आने के बाद प्रोडक्ट का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से परफॉर्म करना है, uv। प्रोडक्ट रूल क्या है, y इज इक्वल टू uv, तो dy by dx क्या होगा, u dv by dx। ये रूल भी यहां पे लिख रहा हूं, जिनको पता नहीं है वो कंफर्म करे, रूल तो मालूम होना ही चाहिए सबको, राइट। ये पहला फंक्शन x स्क्वायर, दूसरे का डेरिवेटिव, रूल कहता है कि u को एज इट इज लिखो, y का डेरिवेटिव dy by dx, क्योंकि y में x है, प्लस दूसरा फंक्शन y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यस रुद्राज, सब लोग समझ के काम करें, वेरी केयरफुली मेरे साथ रहने चाहिए आप, जहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वहां पे आप रहने चाहिए। प्लस ये प्रोडक्ट का डेरिवेटिव मैं परफॉर्म कर रहा हूं अगेन u इंटू v से, ये भी डेरिवेटिव कैसे आएगा, u इंटू v से, ये प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, इट इज 2y dy by dx। बी केयरफुल स्टूडेंट्स, y स्क्वायर है यानी कि f of x रेज़ टू n है, y x का फंक्शन है, ये x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे, आपके माइंड में ऑलवेज रहना चाहिए जहां पे भी y है उसको x का फंक्शन ट्रीट करना है, राइट। मतलब ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि f of x रेज़ टू n का फार्मूला एप्लीकेबल हो गया, n f of x रेज़ टू n
n माइनस 1 इंटू dy बाई dx प्लस क्या हो गया y स्क्वायर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस प्लस क्या हो गया ये y क्यूब का डेरिवेटिव 3 ये y क्यूब यानी कि अगेन f ऑफ x रेज टू n टेबल का f ऑफ x रेज टू n वाला फॉर्म है y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0. इज इट ओके? यस. सब लोग समझ के काम कर रहे हैं, राइट? तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो डेरिवेटिव लिखने के बाद अभी रीअरेंजमेंट है. डेरिवेटिव का रोल फिनिश हो गया. आप जिसमें dy by dx है वो टर्म मार्क करो. These are the three terms in which there is a dy by dx, right? ये dy by dx जिसमें है वो टर्म एक ब्रैकेट में कलेक्ट करो. x square here it is 2xy, here it is 3y square into dy by dx. और जिसमें dy by dx नहीं है ये राइट में ट्रांसफर करो. माइनस 3x स्क्वायर इसमें dy by dx नहीं है, ट्रांसफर इनटू राइट. इसमें dy by dx नहीं है, ट्रांसफर इनटू राइट. तो ये थंब रूल याद रखना है. आफ्टर डिफरेंशिएशन ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे प्रोडक्ट से जो भी डेरिवेटिव आएगा, अभी तो ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस है. जिसमें dy by dx है उनके सारे कोएफिशिएंट कलेक्ट करना है, और जिसमें dy by dx नहीं है ऐसे सारे टर्म राइट में भेज देना है. तो क्या आ गया फाइनल आंसर? dy by dx इज, ये माइनस कॉमन लिख के मैं लिखूंगा, ये 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. तो ये इसका फाइनल आंसर है. इज दिस क्लियर? सब लोगों को समझ में आ गया? तो रूल बहुत सिंपल है. चेन रूल ही हम यूज कर रहे हैं. दिस इज चेन रूल. पहले तो डेरिवेटिव लेके खाली माइंड में इस आर्टिकल में ये रखना है कि जहां पे भी y है वो x का फंक्शन है. y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट? तो x का फंक्शन है तो u ही प्रोडक्ट रूल से ये काम करेंगे. यहाँ पे u भी एप्लीकेबल हो गया. 81 का डेरिवेटिव 0. तो ये डेरिवेटिव तो यूजुअल है. अभी dy by dx के सारे कोएफिशिएंट मैंने कलेक्ट किए ब्रैकेट में, और जिसमें dy by dx नहीं है ऐसे सारे टर्म मैंने राइट में ट्रांसफर किए. आई होप इट इज क्लियर. सबको क्लियरिटी आ गई? यस. नेक्स्ट x स्क्वायर, ये क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर. देखो नेक्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर y स्क्वायर. x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ये tan इनवर्स रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये कुछ ऐसा लिखे वाला है. पहले तो आपको इसको ऐसा देखना है, इसलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के रिजल्ट्स आपको नोट करके दिए. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के रिजल्ट क्या नोट करके दिए? ये देखो, ये बहुत सिंपल है. लगता है ये डिफिकल्ट है. Those who remembered inverse trigonometry, yes, कोई बताए क्या है? चैट बॉक्स में लिखे. Which result we are using? ये कोई भी बताए? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y.
ये नोट करके दिया गया आपको, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, या जो भी है एंगल सेम है, तो आपको ऐसा नोट करके दिया है। 3 रिजल्ट्स ऐसे नोट किए हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के, जो को फंक्शन जब आते हैं तो उसकी एडिशन π/2 होती है। ये सबको याद है क्या? ये मैं फिर से लिख रहा हूं, ये परमानेंट याद करें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, राइट, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2। ऐसा आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के डेरिवेटिव के पहले नोट करके दिया है। और सब लोग याद रखेंगे कि अगर को फंक्शन इनवर्स में सम में आ गए तो उसकी सम ऑलवेज π/2 होती है। तो नहीं तो कुछ स्टूडेंट को ये मालूम नहीं है, तो अननेसेसरी इसको डिफरेंशिएट करते बैठते हैं, जो कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको इमीडिएट समझ में आने चाहिए। तो जो रिजल्ट दिए हैं वो रीड करें और देखिए, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज π/2, x square y square is π/2. Is it okay? It is π/2. समझ में आ गया? ये रिजल्ट है, इसलिए ऐसा लिखा। जिनको मालूम नहीं है रिजल्ट नोट करें। और भी एक रिजल्ट आपको नोट करके दिया है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x is also π/2, जिसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत बार यूज करने वाले हैं। अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद आपको समझाएंगे। एक चैप्टर ही आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें इसकी सब डिस्कशन है, राइट? यस, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस। अब ये π/2 आने से ये डेरिवेटिव इजी हो गया। यहाँ पे तो प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव uv, ये रूल कौन सा एप्लीकेबल है? uv रूल सब जानते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। खाली इंप्लिसिट में क्या ध्यान में रखना है, जो भी जहां पे भी y आएगा वो x का फंक्शन है, ये समझ ले। तो ये हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, uv कहता है कि u एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखते टाइम y यानी कि f ऑफ x है, ये माइंड में रखे। y जहां पे भी आएगा वो f ऑफ x है मान लीजिए, और वो y स्क्वायर यानी कि f ऑफ x रेज़ टू n का फार्मूला है। यस रोकड़े, आंसर करेक्ट है आपका। ये 2y dy by dx प्लस y स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 0, राइट? वेरी गुड। देखिए पहला फंक्शन एज इट इज, ये y रेज़ टू n यानी कि f ऑफ x रेज़ टू n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n f ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1 इनटू f डैश dy by dx। इसलिए मैंने कहा चेन रूल पहले क्लियर होना चाहिए। जिनको चेन रूल समझ में नहीं आया, यहाँ पे आके इंडिविजुअली कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ लो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। चेन रूल जिनको समझ में नहीं आया है, तो ये क्या हो गया? dy by dx is minus 2xy square upon 2x square y. 2 cancel, y also cancel, x also cancel. So what remains is minus y by x is the answer. तो वेरी सिंपल है। तो आप जरा ये कॉमन सेंस यूज करें। जो रिजल्ट्स आपको मालूम नहीं है तो अननेसेसरी आप कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव परफॉर्म करते रहेंगे, राइट? सो इट इज वेरी सिंपल। y is equal x into e raised to y
दिख रहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का डेरिवेटिव u इंटू वी से, यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है u इंटू वी से। वेरी सिंपल, जहां पे प्रोडक्ट है वहां पे u इंटू वी अप्लाई करें। तो ये पहला फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू y, ये e रेस टू y इंटू dy बाय dx, ये समझ में आ रहा है क्या? e रेस टू y यानी कि कौन सा फॉर्म है? y इज इक्वल टू e रेस टू y, f ऑफ x का फॉर्म है। तो ये f ऑफ x का e रेस टू f ऑफ x का टेबल रिकॉल करें, f डैश ऑफ x। तो जहां पे भी y है वो x का फंक्शन है, यानी कि e रेस टू y का डेरिवेटिव यानी कि e रेस टू f ऑफ x का है। चेन रूल रिकॉल करें, तो e रेस टू f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। ये थंब रूल आपको इस आर्टिकल में थ्रू आउट याद रखना है। प्लस ये देखो दूसरा फंक्शन e रेस टू y है, x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया इसका प्रोडक्ट, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। सब लोग अटेंटिव रहते, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, राइट। नेक्स्ट प्लस यहां से फिर प्रोडक्ट है u इंटू v, पहला फंक्शन y, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, प्लस दूसरा फंक्शन e रेस टू x, y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या है? dy बाय dx इज इक्वल टू 0। y ऑलवेज x का फंक्शन है, बस इतना याद हो गया कि ये चेन रूल ही है, दूसरा कुछ सेपरेट पढ़ रहे नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये जब भी समझ में आता है कि हमें x एंड y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये अभी दूसरा क्या है, जिसमें dy बाय dx है वो टर्म खाली लेफ्ट में लिखे, जिसमें dy बाय dx नहीं है ये टर्म मैं एरो बता रहा हूं उसको राइट में ट्रांसफर करना है। तो ये क्या हो गया? x e रेस टू y, और ये क्या हो गया? e रेस टू x। ये देखो dy बाय dx के मैंने कोएफिशिएंट कलेक्ट किए, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट है, यहाँ पे e रेस टू x है, और जिसमें dy बाय dx नहीं है ऐसे टर्म राइट में ट्रांसफर करें। ये ट्रांसफर हो गया राइट में। तो ये तो अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस है, और फाइनल आंसर dy बाय dx इज, ये माइनस के साथ e रेस टू y प्लस y e रेस टू x अपॉन x e रेस टू y माइनस e रेस टू x। यस, ये प्लस है, ये कोएफिशिएंट जो है ना प्लस है, e रेस टू x प्लस है, फाइन। तो दैट इज द डेरिवेटिव। तो बहुत ही सिंपल है, जिनको चेन रूल आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोग एब्सेंट थे, वेदांत पांचाल, आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो मुझे नहीं लगता कि आप रेगुलर थे, समझ में आ रहा है। कुछ लेक्चर्स यहाँ पे आके अटेंड करें। राइट, ये देखो ये अभी समझ में नहीं आया कि आगे बहुत ट्रबल में आने वाले हैं। e रेस टू x प्लस y, e रेस टू x प्लस y इज cos ऑफ x माइनस y, e रेस टू x प्लस y cos ऑफ x माइनस y। इम्प्लिसिट है, देखते ही समझ में आता है। खुद को क्वेश्चन करे, कैन आई राइट y इन टर्म्स ऑफ x? खुद को क्वेश्चन करे, y मैं x में लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। तो समझ में आया कि इम्प्लिसिट है। तो इम्प्लिसिट का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या माइंड में रखना है? e रेस टू x प्लस y का डेरिवेटिव
e raised to x plus y into x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx। मैंने आपको समझाया कि e पावर f of x एप्लीकेबल है। यस, e पावर f of x एप्लीकेबल है। ये e पावर f of x का चेन रूल समझे, e पावर f of x into f dash of x। ये डेरिवेटिव होता है e पावर f of x का। एंड राइट हैंड साइड में ये समझ में आया सबको, इंटू f डैश यानी x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू cos x माइनस y का डेरिवेटिव। यस, cos ऑफ f of x का फार्मूला एप्लीकेबल है। चेन रूल तो कभी नहीं भूलना है, वो तो फंडामेंटल है, वो यूज होने वाला ही है। cos f of x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव, कोफंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है माइनस sin x माइनस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y। x माइनस y का डेरिवेटिव क्या है? x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx। ये ध्यान में रखना, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। यस रुद्राज, ये cos f of x का फार्मूला यूज हुआ। cos f of x का फार्मूला माइनस sin f of x इनटू f dash of x। ये हो गया e raised to x plus y प्लस e raised to x plus y into dy by dx is equal to minus sin x minus y, minus minus plus sin x minus y into dy by dx। ये माइनस माइनस प्लस sin x minus y into dy by dx, राइट। तो ये मल्टीप्लाई किया। अभी सभी एग्जाम्पल में वही रूल है कि जिसमें dy by dx है वो टर्म लेफ्ट में ले, जिसमें dy by dx नहीं है वो सारे टर्म राइट में ट्रांसफर करे। तो डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, आगे की मैनिपुलेशन जो है वो सिंपल है। इसको लेफ्ट में लेंगे तो ये e raised to x plus y, ये लेफ्ट में लेंगे तो माइनस साइन ऑफ x माइनस y इनटू dy by dx is equal to minus sin of x minus y into minus e raised to x plus y। ये टर्म राइट में आ गई। जैसे डेरिवेटिव परफॉर्म हो गया उसके बाद तो मैनिपुलेशंस है, जिसमें dy by dx है सारे टर्म लेफ्ट में कलेक्ट करें और आंसर तो इमीडिएट आएगा। अब इस आर्टिकल के बाद इसकी शॉर्टकट बताएंगे। आप इसके लिए बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है, डायरेक्टली वन स्टेप डेरिवेटिव है, आंसर पे ही आएंगे आप डायरेक्ट। तो अभी ये थ्योरी में लिखने के लिए ऐसा है, उसकी शॉर्टकट में डायरेक्ट यहां से यहां ही आएगी। वन सिंगल स्टेप शॉर्टकट है इम्प्लिसिट के लिए, वो समझाएंगे बाद में। पहले अच्छे से ये प्रोसेस माइंड में रहनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है cos xy is equal to x plus y, डेरिवेटिव ऑफ cos xy is equal to x plus y, राइट। यहां पे भी दिख रहा है एंगल में x इंटू y है, तो इसको तो आप सेपरेट कर ही नहीं सकते इस एंगल को। cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला है आपके पास, लेकिन cos ऑफ ab का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है।
यस, ये कौन से फॉर्म से आएगा? ये चेन रूल का कौन सा फॉर्म है? cos ऑफ f ऑफ x। cos ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डेरिवेटिव x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। समझ में आया? तो ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू प्रोडक्ट पहला फंक्शन x, y का डेरिवेटिव, ये uv रूल एप्लीकेबल हो गया। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बस डेरिवेटिव का रोल एक स्टेप में है। अब तो सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें dy बाई dx है x इंटू साइन एक्स वाई, ये और ये टर्म लेफ्ट में आ गई, तो ये टर्म ओके, मैं एक स्टेप बढ़ा भी सकता हूं, dy बाई dx माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई, ये प्रोडक्ट कर लो और फिर अभी ट्रांसफर करो, दिस टू लेफ्ट, दिस टू राइट, राइट। तो डेरिवेटिव परफॉर्म करने के बाद इसको लेफ्ट में लिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई, राइट। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स वाई अपॉन ये माइनस 1 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, राइट।
right? So it is differentiating with respect to x. e raised to x minus y का डेरिवेटिव e raised to x minus y into e raised to f of x का डेरिवेटिव e raised to f of x into x का डेरिवेटिव 1 minus y का डेरिवेटिव dy by dx, right, is equal to log x का डेरिवेटिव 1 by x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx. यस, सब लोग इन्वॉल्व होके कर रहे हैं. log y का डेरिवेटिव 1 by y dy by dx. यस, इसको मल्टीप्लाई करें इनसाइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e raised to x minus y minus e raised to x minus y dy by dx is equal to 1 by x minus 1 by y dy by dx. ये लेफ्ट में, ये राइट में ट्रांसफर करें. अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें dy by dx है वो लेफ्ट में कलेक्ट करे टर्म्स, ये माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, तो ये 1 by y minus e raised to x minus y dy by dx is equal to 1 by x minus e raised to x minus y. तो what is dy by dx? ये dy by dx बनेगा, इसका अगर मैंने LCM लिया ही तो ये बनेगा ओके 1 minus x into e raised to x minus y upon x, और ये राइट में आके इधर देखो ये होगा y into 1 minus e raised to x minus y, ये y into. तो फाइनली द आंसर इज दिस, ये हो जाएगा y by x in bracket 1 minus x into e raised to x minus y upon 1 minus y into e raised to x minus y. So this is the final form of derivative. Next, x plus, ये लास्ट 10th एग्जाम्पल है इस काइंड का, x plus sin of x plus y is equal to y minus cos of x minus y. x plus sin of x plus y, y minus cos of x minus y. तो डिफरेंशिएट करें, देखते ही समझ में आता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. देखते ही समझ में आता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. So differentiating with respect to x, x का डेरिवेटिव 1, sin of x plus y का डेरिवेटिव, yes, it is cos of x plus y into x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx. ये चेन रूल है. x का डेरिवेटिव 1 और y sin of x plus y का डेरिवेटिव cos of x plus y into x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to y का डेरिवेटिव 1, no, y का डेरिवेटिव dy by dx. y is a function of x, y is a function of x, right, into ये माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin x minus y into x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy by dx. ये cos f of x का फार्मूला एप्लीकेबल है. cos का माइनस sin x minus y, x का 1, y का dy by dx
राइट। तो ये फॉर्मूले से ये डेरिवेटिव क्या हो गया, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इसको मल्टीप्लाई करके लिया, इसको भी मल्टीप्लाई करके लो, डी वाई बाई डी एक्स। ये साइन अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, एक्स 1 इंटू दिस। खुद परफॉर्म करें अपने अपने कैलकुलेशंस, राइट। तो ये माइनस क्या हो गया, साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में आए, राइट। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में आए, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो सारे टर्म राइट में भेज दे। सो इट इज cos ऑफ x प्लस वाई, ये -1, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, साइन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये साइन ऑफ x माइनस वाई, और वो टर्म इधर आ गई तो माइनस कॉस ऑफ x प्लस वाई -1। So what is the derivative? dy by dx is, ये डेरिवेटिव हो गया साइन ऑफ x माइनस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई -1, और ये कॉस ऑफ x प्लस वाई -1 साइन ऑफ x माइनस वाई। So this is the derivative, राइट। तो ये dy by dx लेफ्ट में लिया, ये dy by dx लेफ्ट में आए। तो ये तो मैनिपुलेशंस है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, e sin f of x cos f of x sin f of x का डेरिवेटिव चेन रूल आप अप्लाई करें, और साथ में y जहां पे है वो x का फंक्शन ट्रीट करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये शो दैट वाले रिजल्ट है अभी, और हर एक शो दैट रिजल्ट में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। वो कैसे, देखिए कि शो दैट वाला रिजल्ट डायरेक्टली प्रूव नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस है, राइट। तो इसका पहला रिजल्ट तो हमने ऑलरेडी प्रूव ही किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आज आए बराबर मैंने यही क्वेश्चन प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट dy by dx is y by x। इन सब का आंसर y by x है। एज ए शॉर्टकट बोल के आपको याद रखने के लिए कहा गया, where a and p are constant। तो पहला क्वेश्चन तो मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि अभी अभी बताया आपको, क्या बताया शॉर्टकट। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, y is equal to x raised to 7 y raised to 5 is x plus y raised to 12। आज आए बराबर हमने जो पहला क्वेश्चन किया वो क्या था, x raised to m y raised to n x plus y raised to m plus n, इन दोनों की सम यहाँ पे है, तो आंसर क्या आता है y by x। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्टकट है, राइट। ये प्रूव किया है, मैं इसको प्रूव नहीं करता हूं, आप इसको प्रूव करें, राइट। आपको बताया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी वही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वही मेथड है। ये x raised to p y raised to 4 is equal to x plus y raised to p plus 4, ये भी वही शॉर्टकट है, इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आए बराबर प्रूव करके बताया है। तो ये भी सेम तरीके से आएगा, राइट। नेक्स्ट है थर्ड क्या है, देखिए सेक ऑफ
रेज टू 5 y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 y रेज टू 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर. Sec of x raised to 5 y raised to 5 x raised to 5 minus y raised to 5 a square. अभी जरा ध्यान दें. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है. अब देखो आंसर इसका शो दैट है dy by dx y by x. अब जरा सोच समझ के कोई बताए क्या करना चाहिए. आंसर ये है, आपको ये प्रूव करना है और ये फंक्शन है आपका. सो एनीबडी क्या करना चाहिए. आंसर को देखिए. आंसर में देयर इज ओनली एक्स एंड वाई और फंक्शन को देखिए. नो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा. इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से आंसर नहीं मिलेगा. क्या करना चाहिए बताओ. यहां पे इधर ध्यान दे. ये सेक जो है, ये सेक को क्या लिख सकते हैं. पहली बात ये x रेज टू 5 y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 y रेज टू 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स a स्क्वायर. ये देखो एमसीक्यू के लिए ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव जो आता है आपको वो टिपिकल फॉर्म का होता है, उसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशन जरूरी है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन. तो इसमें ये आपको समझ लेना था कि ये सेक है और आंसर में तो इसका डेरिवेटिव सेक इनटू tan आएगा और यहां पे तो सेक tan कुछ भी नहीं चाहिए. तो इसलिए मैंने क्या किया, ऐसे केस में ये सेक को सेक इनवर्स इधर लिखे. अब यहाँ पे फंक्शन कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली सेक हो सकता है, लॉग हो सकता है, tan हो सकता है, cos हो सकता है, एनी. कितने एग्जांपल कंस्ट्रक्ट हो गए. लॉट ऑफ. ये लॉट ऑफ एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं और ये ध्यान में रखे. ये एक शॉर्टकट बोल के नोट करे. ये जैसे शॉर्टकट है, ये f ऑफ x रेज टू n माइनस y रेज टू n अपॉन x रेज टू n प्लस y रेज टू n इज अ कांस्टेंट k. ये जब भी कांस्टेंट आएगा तब इन सबका आंसर dy by dx इज y by x आएगा. ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, नोट करें इसको. जेई तक आपको यूज करना है, सीटी के लिए तो स्पेशल है, जो टाइम सेविंग ट्रिक है. क्या बताया इधर ध्यान दे सब लोग. इन जनरल बता रहा हूं. ये सेक अभी f क्या हो सकता है, f कौन सा भी फंक्शन हो सकता है. f यहां पे सेक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, लॉग हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, साइन कॉस tan एनी फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है. तो इन जनरल बताया. पावर भी x रेज टू 5 यहां पे प्लस लिखो, यहां पे माइनस लिखो. माइनस प्लस के लिए भी होता है, प्लस माइनस के लिए भी होगा. तो इन जनरल ऐसे फॉर्म का फंक्शन जब भी आएगा तो उसकी शॉर्टकट क्या है, y by x. ये देखो इसकी भी शॉर्टकट क्या है, y by x. कितने शॉर्टकट के आंसर्स y by x फॉर्म में है. ये जो फॉर्म पढ़े आए बराबर ये बताया x रेज टू m y रेज टू n इज x प्लस y रेज टू m प्लस n. ये भी y by x में आता है. सब लोगों को ऑब्जर्वेशन में आई बात. अब देखो धीरे धीरे ये बढ़ाते हैं, ये आपका अप्रोच स्पेसिफिक बनता है. ये एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी है. तो सब लोगों ने ये याद किया. यह फॉर्म अभी इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें या इसको कुछ लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट कहे. ये कांस्टेंट है, इसमें x ही नहीं है तो इसलिए तो जीरो हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव लिखते टाइम. तो अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, LHS का डेरिवेटिव आएगा
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे भी अगर आपको टाइम सेव करना है तो कर सकते हैं। मैं पहले एक बार लिख के बता रहा हूं, dy बाय dx, इसका डेरिवेटिव u बाय v फॉर्म से होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? u बाय v। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, सेक इनवर्स ए स्क्वायर। इसको जरूरत नहीं है कि सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स अप्लाई करने की, यहां पे तो वेरिएबल ही नहीं है, ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है। तो बात समझ में आ गई? इसको डिफरेंशिएट करना है ये u बाय v से। सब लोग अच्छे से ध्यान दे, x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट है। x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 होल स्क्वायर, ये हो गया x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इनटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव अब ये देखो v, u बाय v जानते हैं सब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 dy बाय dx। ये केयरफुली परफॉर्म करें, राइट। मैं इसका और एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, आप पहले इसको ऐसा तो याद रखें, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x रेज टू 5 y रेज टू 5, न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बताएं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? x रेज टू 5 का 5x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया क्या? देखिए, राइट, u बाय v से v स्क्वायर, v एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये राइट हैंड साइड में 0 होके 0 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे इसमें भी मैनिपुलेशंस है, राइट, इसलिए तो बताया गया ये शॉर्टकट से आंसर ही याद रखना है y बाय x, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, राइट। ओके, इधर ध्यान दो। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें और आंसर आपको निकालना है मल्टीप्लाई करके। तो ये जो मैनिपुलेशंस है ये थोड़े टिपिकल है। ये क्या हो गया देखो, 5x रेज टू 9 माइनस 5x रेज टू 4 y रेज टू 5, इसने इसको मल्टीप्लाई किया हमने। नहीं तो ये भी, ये देखिए आपको समझ में आ गया, ये जरा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। सबको समझ में आया क्या? मैं इसको भी अवॉइड करूंगा, ये टाइम, ये इसको डिफरेंशिएट करे, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट ये तो है ही हमारे पास। मैं इसको और शॉर्ट कैसे कर सकता हूं, इधर ध्यान दे। इसको और शॉर्ट कैसे कर सकता हूं, इधर ध्यान दे। ये तो आपको आंसर आएगा ही, इसको सिंप्लीफाई करो घर पे जा। अभी जो मैंने डायरेक्शन बताई वो काम करे। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको k कहे। ये जो कांस्टेंट है इसको k कहे, और इसको देखिए x रेज टू 5 y रेज टू 5 इज इक्वल टू k x रेज टू 5 k y रेज टू 5। इधर समझे, जानबूझ के मैंने क्या किया, ये सेक इनवर्स ए स्क्वायर है, दिस इज सम कांस्टेंट, लेट इट बी k, और मैंने ये डिनोमिनेटर राइट में लिखा, तो ये ऐसा हो गया। पूरा ध्यान इधर दे, ऐसा करने से बहुत जल्दी आंसर आता है, राइट। तो ये अभी ये k y रेज टू 5 प्लस k y रेज टू 5 k x रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5, ये राइट में ट्रांसफर करें। और देखो यहां से y रेज टू 5 कॉमन आ गया, 1 प्लस k आया, और ये k माइनस 1 इंटू x रेज टू 5 आया। यहां तक किसी को दिक्कत है? पूरा ध्यान इधर दे। यस, अभी यहां पे समझे, ये क्या आ गया देखिए, y रेज टू 5 अपॉन
k माइनस वन अपॉन k प्लस वन। सबको समझ में आया? अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, y बाय x, ये y बाय x रेस टू 5 इज इक्वल टू k माइनस वन अपॉन k प्लस वन। ये जो रेस टू 5 है, टेकिंग फिफ्थ रूट बोलता हूं मैं, टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड। मुझे तो जितना सिंपलेस्ट फॉर्म y बाय x का मिलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है, इसका फिफ्थ रूट लिए क्या और 10th रूट लिए क्या, डेरिवेटिव तो इसका 0 होने वाला है। बात समझ में आई क्या? इसमें भी अगर आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ बढ़ रहे, एक बात बताया मैंने जनरल, उसको आप डिफरेंशिएट करो, उसका भी आंसर y बाय x आएगा, लेकिन अभी आंसर बहुत क्विक आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये x स्क्वायर। अभी तक ध्यान दिया, ये u बाय v यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं, u बाय v यहां पे भी अप्लाई कर रहे हैं, v स्क्वायर, u बाय v का रूल सबको पता है, u बाय v का डेरिवेटिव क्या होता है, v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v स्क्वायर, v एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx माइनस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये हो गया x dy बाय dx माइनस y इज 0, तो ये हो गया x इंटू dy बाय dx इज y, ये राइट में y जाएगा, therefore dy बाय dx इज y बाय x। तो ये आंसर ये क्विकली आएगा अगर आप ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं तो। पहले तो शॉर्टकट ही याद रखनी है, कोई कैलकुलेशन इसमें करना ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट आंसर y बाय x आएगा। फिर भी अगर इसको थ्योरी में आया तो थ्योरी में इसको ऐसा ही करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ एमसीक्यू के शॉर्टकट भी फॉर्म हो रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन अगर आप पूरी तरह अटेंटिव नहीं है तो एमसीक्यू में दिक्कत जाएगी, और ऐसे क्वेश्चन का एमसीक्यू में थ्योरी आंसर निकालते बैठेंगे तो सीटी का पेपर सॉल्व ही नहीं होगा, राइट? तो ये ऑब्जर्वेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एमसीक्यू के लिए भी। यस, अभी नेक्स्ट आप ही बोलेंगे मुझे सेम काइंड का क्वेश्चन है, सब में यही मैनिपुलेशन करे, राइट? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, अभी नोट करें ये आंसर सब लोग। इधर tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 4 का tan इनवर्स, ये 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज a स्क्वायर। ये कुछ भी देता, कांस्टेंट फंक्शन भी कुछ भी देता है, मैंने अभी जनरल फॉर्म लिख के बताया, कैसा फॉर्म बताया, f ऑफ x रेज़ टू n माइनस y रेज़ टू n अपॉन x रेज़ टू n, उसके साथ कोई कांस्टेंट भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा y बाय x। देखो आपको ये थ्योरी पढ़ने का बेनिफिट ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम आप नहीं देखते हुए भी आंसर आपको पता रहेगा, जो इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। राइट, तो इसको भी क्या लिखेंगे, पहला स्टेप, ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से कभी नहीं आएगा, तो आंसर में हमें y बाय x चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि y बाय x चाहिए, मतलब ये tan इनवर्स नहीं चाहिए, डायरेक्ट डेरिवेटिव कभी नहीं आंसर के फॉर्म में रिड्यूस होगा, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू tan a स्क्वायर, इसको कहे
और इसको राइट में भेजेंगे तो ये हो जाएगा ये 3k x स्क्वायर 4k y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसको लेफ्ट में ले, इसको राइट में भेजे। ये 3 माइनस 3k इंटू एक्स स्क्वायर और ये 4k प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर। ये जब मैनिपुलेशन की टाइप है उसको ऐसा ही करना पड़ता, नहीं तो कुछ लोग इसको u बाय v से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, उससे भी आंसर आएगा, उस पे भी टाइम कंज्यूम होता, जैसे कि मैंने करके बताया अभी, आप घर पे देखिए उससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। अभी क्या आ गया देखिए, ये आ गया 3 माइनस 3k अपॉन 4k प्लस 4 इज y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। इट इज y स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, y बाय x टेकिंग स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज 3 माइनस 3k अपॉन 4k प्लस 4। तो ये स्क्वायर रूट लो तो y बाय x आएगा और इसका स्क्वायर रूट यानी कि रेस टू, ये रेस टू क्या आएगा 1/2। राइट, तो ये 3 माइनस 3k अपॉन 4 प्लस 4k रेस टू 1/2 इज y बाय x। अभी डिफरेंशिएट करो, तो ये थियरी में आपको अच्छे से नोट करना है। शॉर्टकट तो आंसर एमसीक्यू में तो ये भी नहीं करने वाले, y बाय x देखते ही बोलने वाले हैं कि y बाय x। नो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा स्पीड है, यहां से आप आपका स्पीड चेक करो। ये x स्क्वायर x इंटू dy बाय dx माइनस y इंटू x, ये 0 हो गया। v स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, राइट हैंड साइड में 0 हो गया। एक्स स्क्वायर राइट में गया, x इंटू dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये dy बाय dx इज y बाय x, आंसर आ गया। तो ये जो मैनिपुलेशन का वे है वो स्पेसिफिक है, ये सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही है, एक जैसे ही है, सबका आंसर y बाय x है। मयूर 6th वन बोल रहा है, 6th वन, यस 6th वन में भी कर सकते हैं। देखिए 5th वन आप करेंगे क्योंकि इसके जैसा ही है 5th वन, मैं 6th वन के लिए जाता हूं। सेम समझ में आ गया, सबका आंसर y बाय x ही है। 5th वन आप प्रैक्टिस करें, राइट। ये 6th वन देखिए क्या है, 6th वन है log of x raised to 20 minus y raised to 20 upon x raised to 20 plus y raised to 20, मैंने तो n बताया आपको, is equal to 20, is equal to 20। तो ये n कुछ भी चेंज करेगा, x रेस टू n 25 कुछ भी चेंज करेगा, सबका आंसर आपको समझ में आना चाहिए y बाय x। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट डेवलप हो गई इससे, राइट। अब पहले तो लॉग हटा दो, एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, इधर वाला फंक्शन राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि उसका इनवर्स ले रहे हैं। इनफैक्ट टैन को उधर राइट में लिखा, मतलब इनवर्स लिए। लॉग का इनवर्स क्या है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल। मयूर ये समझ में आना चाहिए था, ये टेकिंग एक्सपोनेंशियल समझ में आना चाहिए था। अभी तक 2-3 क्वेश्चन में क्या किए,
इनवर्स ले रहे इनफैक्ट tan इनवर्स इधर है, मतलब दोनों साइड tan अप्लाई करे, tan इनवर्स अप्लाई करे, sin अप्लाई कर रहे, sin इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इनवर्स log का एक्सपोनेंशियल है तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20, इधर एक्सपोनेंशियल अटैच हो जाएगा e रेस टू 20। एक्सपोनेंशियल ये मतलब ये log निकल गया, इधर अटैच हो गया, इसको k कहे, कोई दिक्कत का काम नहीं है, इसको k कहे। और k कहने के बाद अभी तो यूजुअल प्रोसेस है, बोले कटे, k को लेफ्ट में ले, इसको राइट में लिखे, 1 माइनस k x रेस टू 20 k प्लस 1 y रेस टू 20 on x रेस टू 20 k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 या 1 माइनस k y by x raised to 20 taking 20th root, taking which root? 20th root। तो ये तो समझ में, सबको टाइप समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आगे चल के ये एमसीक्यू में आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगी, राइट। 1 प्लस आता है क्या? ओके, जो भी है। तो अभी डिफरेंशिएट करें। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, देखो आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें अटेंटिव रह के, कितना भी सिंपल हो, अटेंटिव रह के, साथ में आरडी शर्मा रखे। अगर ये आपका फास्ट हुआ तो आरडी शर्मा का एक क्वेश्चन सॉल्व करे, जो लोग क्विकली कर रहे हैं, सपोज ये समझ में आ गया उनको, तो ये तो प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करके देखे, नहीं तो मुझे समझ में आ गया, अभी जैसे करने का नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। You need to go through every example first of R.D. Sharma and textbook. Then MCQ के इसके hundreds of example हम लेने वाले हैं, उसमें आपको सारे टेक्निक्स बताए जाएंगे। और पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, लेकिन यही क्लियर नहीं है तो MCQ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। x dy by dx minus y into x का डेरिवेटिव 1, ये राइट हैंड साइड 0, राइट। तो ये आ गया x dy by dx minus y is 0, तो ये हो गया x dy by dx is y and answer is dy by dx is y by x, very important। तो ये टेक्निक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। और दो एग्जांपल्स है इसी के जैसे, ये पूरी एक्सरसाइज ही शॉर्टकट में आती है, वो आप कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लॉग लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लेना पड़ा, वहां पे 7 में लॉग लेना पड़ेगा, और वो भी इसके जैसा है। लास्ट में साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, वो भी इसके जैसा है। वो दो क्वेश्चन आप कर ले। यह सब लोगों को समझ में आ रहा है? देखो धीरे धीरे ये हम एक एक टर्म जुड़ाते चल रहे हैं, डेरिवेटिव एंड में आ रहा है, अभी 2 आर्टिकल ही रहे हैं, तो इसके बाद आपको कौन सा भी डिफरेंशिएशन आना चाहिए।